Assalamu alaikum, hello and welcome to our YouTube channel. In the previous video, we basically discussed Right to Information Act, its need for such a legislation in India, and what was the historical background of this legislation. That is the kind of the journey that took place in India from 1990s and which eventually took the form of RTI Act 2005. And before that, we saw a number of mass movements in the form of Mazdoor Kisan Shakti Sangathan that later on took the form of National Campaign for People's Right to Information. There also we saw an instrumental role played by the Indian judiciary, impressing upon the government of the day that there has to be a legislation to ensure accountability and transparency of the government and the public authorities. Now we come to the legislative aspect of this, that is, what are the salient features of the RTI Act? अभी तक हमने जो देखा वो इसका एक समाजी पहलू था और एक हिस्टोरिकल और इतिहास से रिलेटेड एक पहलू था. हम इसका कानूनी पहलू जो है इस वीडियो में देखेंगे कि इस आरटीआई एक्ट के बेसिक फीचर्स क्या है, यानी ये आरटीआई एक्ट दरअसल कैसे एक सिटीजन को एम्पावर करता है. Remember the kind of the legislations that were brought by the British in the pre-independent era and even in the post-independent era by the governments of the free India. Unfortunately, those legislations would always attempt at empowering the bureaucrats and disempowering the masses. उन तमाम legislations का जो अभी तक लाई गई थी RTI से पहले, उनका बुनियादी मकसद ये था कि गवर्नमेंट ऑफ द डे को, ब्यूरोक्रेसी को, अफसर लोगों को, पब्लिक अथॉरिटीज को एम्पावर करना, और अनफॉर्चुनेटली उनका एम्पावरमेंट वुड मीन द डिसएम्पावरमेंट ऑफ द मासेस. Now this was the kind of the legislation which for the first time aimed at empowerment of the masses without disempowering the bureaucracy. अब ये जो आरटीआई एक्ट है 2005, इसने पूरी तरीके से डिबेट को शिफ्ट किया, यानी इट शिफ्टेड द डिबेट ऑन द गवर्नेंस. कैसे? अगर आपको याद हो कि मैंने कहा था कि हिंदुस्तान का जो निज़ाम था इंतज़ामिया का, वो इस बात पर मबनी था कि लोगों को बताना क्या क्या है, बाकी सब छुपाना है. व्हाट कुड बी रिवील्ड. Earlier what we saw, the traditional approach जो था, what could be revealed, यानी एक एनवायरमेंट ऑफ सीक्रेसी था. बस 1 2 3 4 ABCD 4-5 चीजें ऐसी हैं जो लोगों को बतानी है. रेस्ट नीड्स टू बी हिडन. रेस्ट पे आप ऐसा कीजिए, कर दीजिए इनको कैटेगराइज एज क्लासिफाइड फाइल्स, कह दीजिए कि इनकी तरफ किसी को एक्सेस नहीं है जब भी आपसे कोई मांगना चाहे. नाउ क्या हुआ, द मॉडर्न अप्रोच जो आया, मॉडर्न अप्रोच बेसिकली, मॉडर्न अप्रोच इज अ काइंड ऑफ प्री रिक्विजिट for something called welfare state. अगर आप एक welfare state बनाना चाहते हैं, फिर आपके यहाँ होना चाहिए rights based approach, यानी जो गवर्नेंस काम है गवर्नमेंट का, वो कोई भी आपको एहसान आप पे नहीं करता. Earlier the traditional model would look down upon the masses as the objects of charity. अगर आपको हम चावल देते हैं, केरोसिन देते हैं, हेल्थ केयर देते हैं, this is a kind of the we're doing you a favor. लेकिन मॉडर्न अप्रोच जो है वेलफेयर स्टेट का, it is based upon the rights, यानी the citizen has a right to get work if he is workless. That is MG Narega Act. A citizen has a right to get food at subsidized prices. That is Food Security Act. Similarly, a citizen has a right to ensure that he is having all kinds of information that are there necessary for a good governance model. That is the Right to Information Act. पता ये चला कि मॉडर्न अप्रोच जो है, इट इज बेस्ड ऑन ए राइट्स बेस्ड काइंड ऑफ द एंटाइटलमेंट. और इसने क्या किया, एक गवर्नेंस मॉडल को शिफ्ट किया आरटीआई ने, फ्रॉम व्हाट कुड बी रिवील्ड टू व्हाट कुड बी कंसील्ड. यानी अब मामला ऐसा है, everything has to be left open to the scrutiny of the masses except 1 2 3 4, जो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशंस है जो आरटीआई के एम्बिट और दायरे के अंदर नहीं आती है, यानी that cannot be disclosed, there can't be a divergence of that kind of sensitive information. But having said that, the governance model has been shifted.
from what could be revealed to what could be concealed. And this in a way gave a practical shape to Article 19(1)(a) and Article 21. Article 21 याद कीजिए, मेनका गांधी केस, जिंदगी का मकसद जानवरों वाली जिंदगी नहीं है, but it has to involve all those facilities and all those aspects which will add dignity to the life of the individual. That is, when you are able to acquire information, you are adding dignity to the life of the individual by empowering him to seek accountability from the people जिसको इसने elect किया. यानी आर्टिकल 21 को भी एक प्रैक्टिकल शेप दे दी और आर्टिकल 19(1)(a) को भी the right to speak, the freedom of speech and expression does include freedom to acquire the information and disseminate it. कुल मिला के पता चला कि salient features जो है RTI एक्ट ने ये पूरा का पूरा पैराडाइम चेंज कर दिया. अब हम देखेंगे कि ये हम RTI जो बोलते हैं, RTI किसको एम्पावर करता है. RTI के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है और ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी. What is information? जब मैं कहूंगा कि एक आदमी के पास, लोगों के पास पावर है कि वो RTI की एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन बदले में ले सकते हैं एक पब्लिक अथॉरिटी से, एक सरकारी ऑफिशियल और सरकारी दफ्तर से. लेकिन ये इंफॉर्मेशन है क्या? इंफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है बहुत ज्यादा जो है वो इट इज क्वाइट वाइड. इंफॉर्मेशन आता है हर कोई डॉक्यूमेंट, हर कोई मेमो, हर कोई सर्क्यूलर, हर कोई रेजोल्यूशन और हर डॉक्यूमेंट जो कि एक सरकारी दफ्तर में अवेलेबल है. कोई भी मेमो, कोई भी सर्क्यूलर, कोई भी सरकारी दस्तावेज और कोई भी सरकारी लॉगबुक. लॉगबुक बुनियादी तौर पे कहते हैं उस रजिस्टर को which keeps an account of the events. यानी इस सरकारी दफ्तर से कौन सा कागज निकला, इस सरकारी दफ्तर से कौन सा कागज डिस्पैच हुआ, कौन सा कागज जो हमने वो रिसीव किया, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इंफॉर्मेशन है. डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, रेजोल्यूशंस, लॉगबुक्स, बिडिंग पेपर्स, जो भी एक सरकारी दफ्तर के पास सरकारी कागजात है, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन में आता है. और याद रख लीजिए, इट कुड बी इन एनी फॉर्म, चाहे वो लिखत में है या चाहे उसकी सॉफ्ट कॉपी मौजूद है या हार्ड कॉपी मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर है, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन आता है सरकारी दफ्तर में. और याद ये भी रख लीजिए कि सरकारी दफ्तर और सरकारी अथॉरिटी के पास अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है किसी प्राइवेट बॉडी के मुतालिक भी, वो भी इंफॉर्मेशन है. देखिए क्या होता है. RBI इज अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ ऑल द बैंक्स. नाउ RBI के पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तो इंफॉर्मेशन होगी, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का NPA क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ क्या है, उनके प्लान्स क्या है, उनकी वर्थ, उनके जो है वो SDR वगैरह क्या है. लिहाजा RBI के पास एज अ रेगुलेटरी बॉडी तमाम सरकारी बैंकों की इंफॉर्मेशन है. ये इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करानी ही है एज पर RTI एक्ट. But being a regulatory body, RBI also has all the information about the private banks in India. Similarly, SEBI has all the information regarding all those companies जिनके share stock exchange पे listed होते हैं. Similarly, the Department of Education has all the information about government schools as well as the private schools. पता ये चला कि RTI के अंदर information दोनों है. वो इंफॉर्मेशन जो सरकारी इदारों के बारे में है और वो इंफॉर्मेशन जो किसी प्राइवेट बॉडी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, दैट इज आल्सो एन इंफॉर्मेशन एज पर द डेफिनेशन ऑफ द RTI एक्ट. ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में आता है. अब जो नेक्स्ट फीचर है, ये इंफॉर्मेशन हासिल कौन कर सकता है, यानी कौन इंडिविजुअल ऐसा है, जब हम कहते हैं एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल, कौन ऐसा है कि जो एक RTI एप्लीकेशन किसी सरकारी दफ्तर में देगा और बदले में उसके जवाब में वो इंफॉर्मेशन उसको मिलेगी. यानी इट इज अवेलेबल टू whom, इट इज अवेलेबल टू
ये इंफॉर्मेशन किसको मिलेगी? याद रख लीजिए, एज पर द रूल्स फ्रेम्ड अंडर आरटीआई एक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, यानी आरटीआई की जो याचिका और आरटीआई की जो दरखास्त है वो पेश करेगा सिर्फ सिटीजन। एनआरआईज, फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड टू फाइल एन आरटीआई एप्लीकेशन। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सरकार ने क्लियर कर दिया है एज पर द रूल्स फ्रेम्ड अंडर द एक्ट, यानी आरटीआई की जो दरखास्त है वो कर सकता है पेश सिर्फ सिटीजन, और हत्ता कि एनआरआई भी नहीं कर सकता, जबकि एनआरआई सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट ही इज लिविंग आउटसाइड इंडिया। एनआरआई भी नहीं कर सकता आरटीआई की एप्लीकेशन जो है वो दर्ज कर सकता है, और ना ही उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी। नाउ देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। On one hand, we say that right now we are living in the global times. We made an amendment in the Representation of People's Act 1951, allowing the NRIs to vote through proxy also. NRI जो है वो citizen of India है। इससे पहले हमने कुछ साल पहले एक Representation of People's Act में amendment करी थी और कहा था कि NRI आ सकता है इंडिया उस दिन वापस जिस दिन यहाँ इलेक्शन होता है, और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने इलेक्टोरल रोल्स में नाम पाएगा, यानी ही कैन नॉट बी डिनाइड राइट टू वोट, लेकिन ही हैज टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया टू वोट। नाउ लास्ट ईयर वी मेड अनदर अमेंडमेंट कि फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, एनआरआई आ सकता है, एनआरआई प्रॉक्सी के जरिए, अपने नुमाइंदे के जरिए किसी को अपना वोटिंग राइट दे सकता है, वहां से अपना प्रॉक्सी डिक्लेयर करेगा, प्रॉक्सी हिंदुस्तान में उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करेगा। बिकॉज वी बिलीव कि एनआरआईज जो है उन पर भी इस बात का असर पड़ता है। हालांकि वो रहते हैं अमेरिका में, रहते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, उनकी वहां की गवर्नमेंट के अंदर उनको एडमिनिस्टर किया जाता है, लेकिन एनआरआई को बहैसियत इंडियन इस बात से फर्क पड़ता है, बिकॉज आवर इंटरेस्ट्स आर कनेक्टेड कि यहाँ कौन सी गवर्नमेंट रूल करेगी, बिकॉज इट इज द एनआरआई हु सेंड्स मनी टू इंडिया, इट इज द एनआरआई हु हैज अ सर्टेन काइंड ऑफ इमोशनल लिंकेज एंड इमोशनल कनेक्शन टू हिज मदरलैंड। लिहाजा हमने कहा था कि एनआरआईज को भी हक होना चाहिए वोट करने का। On one hand, you are considering NRI as an equal partner by giving him a right to vote through proxy, believing that we are living in the global times and NRIs are affected by the policies, the foreign policy, etc. made by the government of the day. Therefore, they should have a right to elect the government of their choice. On one hand, NRI have been given right of vote to proxy के जरिए वोट कर सकता है, लेकिन दूसरे साइड से हमने उसी NRI से ये हक छीना है कि वो RTI की एप्लीकेशन दायर कर सकता है, which is a kind of contradiction, जिसके साथ आप खुद एक क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि इंफॉर्मेशन सिर्फ सिटीजन को मिलेगी, न NRI को मिलेगी, न फॉरेनर को मिलेगी। If you could recall the लोकपाल एक्ट 2013, लोकपाल एक्ट ने ये बोला है, जो रूल्स अंडर द एक्ट बने हैं, कि लोकपाल के पास जो कंट्री का सबसे बड़ा एंटी करप्शन बॉडी है उसके आगे कंप्लेन कर सकता है कि फलानी दफ्तर में ऐसा हुआ है, सिटीजन भी, एनआरआई भी, और एज पर द रूल ए फॉरेनर कैन आल्सो मेक अ कंप्लेन बिफोर द लोकपाल, व्हिच इज नॉट द केस विद द आरटीआई एक्ट। सो दिस इज अवेलेबिलिटी टू होम, किसको इंफॉर्मेशन मिलेगी। So we saw by virtue of RTI Act 2005 कि इंफॉर्मेशन क्या है और ये किससे मिलेगी। अब हम ये देखेंगे कि इंफॉर्मेशन किससे लेनी है, किसके दफ्तर में जाके आप RTI एप्लीकेशन फाइल करोगे और कहोगे कि मुझे इंफॉर्मेशन दे दो कि ये जो कंप्यूटर्स तुमने जो है वो अवेयर किए हैं, ये जो रिक्रूटमेंट का सामान तुमने किया है, ये जो तुमने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन किया है, सरकारी दफ्तर को ये जो फर्नीचर तुमने जहां से लाया है, इससे रिलेटेड, टेंडर से रिलेटेड, ये जो एक्वायर किया था सारा का सारा मटेरियल, इससे रिलेटेड प्रोक्योरमेंट की सारे डिटेल्स मुझे चाहिए। या किसी और दफ्तर में कि कितने सरकारी मुलाजिम जो है वो ग्रेजुएट है, सरकारी मुलाजिम जो है पोस्ट ग्रेजुएट है। पता चला कि पब्लिक अथॉरिटी कौन है। जब आरटीआई कहता है कि पब्लिक अथॉरिटी से ले लो, तो पब्लिक अथॉरिटी कौन है? क्या हम किसी भी ऑफिस में, किसी भी दफ्तर में जा सकते हैं और आरटीआई फाइल कर सकते हैं? नहीं।
पब्लिक अथॉरिटी की जो डेफिनेशन देगा खुद आरटीआई देगा कि ये पब्लिक अथॉरिटी है कौन, एंड इट इज द सेक्शन 2H of the RTI Act gives the definition of the public authority. किस दफ्तर में जाके RTI फाइल हो सकती है? If you could recall Article 12, the definition of the state, जब हम फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करते हैं कि किस के खिलाफ तुम जा सकते हो जुडिशरी में कि इसने मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट किया है, देयर यू हैव द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 12। और डेफिनेशन ऑफ द स्टेट बहुत ज्यादा वाइड थी, मोर और लेस with certain differences। पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन भी वही है कि किसको मैं कह सकता हूं कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। पब्लिक अथॉरिटी के बारे में याद रख लीजिए कि पब्लिक अथॉरिटी है वो सारी की सारी बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल है। ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर पब्लिक अथॉरिटीज। What are constitutional bodies? Constitutional bodies are the bodies that were created by making changes in the constitution itself, and there are articles in the constitution that govern such bodies. For example, National Commission for Scheduled Caste, Article 338, National Commission for Scheduled Tribes, Article 338A। इसी तरीके से जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हमने की 102nd, what was 102nd amendment? National Commission for Backward Classes, जो कि उससे पहले क्या था, इससे पहले स्टैट्यूटरी बॉडी थी, फिर आईन में अमेंडमेंट करके हमने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसी तरीके से कैग वगैरह, ये सारी की सारी बॉडीज है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जिन्हें आईन ने खुद क्रिएट किया है और पावरफुल है। ये सारी की सारी आती है पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में, यानी इनके दफ्तरों में आरटीआई फाइल हो सकता है और सवाल का जवाब लिया जा सकता है। इसी तरीके से आएगा पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में ऑल द स्टैट्यूटरी बॉडीज। ऑल द स्टैट्यूटरी बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज वो होती है जिन्हें बनाया जाए पार्लियामेंट के किसी कानून से या असेंबली के किसी कानून से। पार्लियामेंट के किसी कानून से हमें पता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, ये एक, या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारी की सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी तरीके से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसी तरीके से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसी तरीके से स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सारी की सारी जो है वो आरटीआई की डेफिनेशन के अंदर पब्लिक अथॉरिटी है। अगर स्टेट की किसी असेंबली ने कोई कानून बना के बनाया है, गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, तमिलनाडु खादी एंड विलेज कॉर्पोरेशन, ये सारी की सारी जो बॉडीज हैं आएंगी स्टैट्यूटरी की डेफिनेशन में, क्योंकि इन्हें बनाता है पार्लियामेंट का कोई कानून या स्टेट के लेजिस्लेचर का कोई कानून, लिहाजा ये पब्लिक अथॉरिटी है, इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, यानी ये एंटरटेन करेंगे आपका आरटीआई। और कौन है पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में, और भी आगे जाइए, और पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में वो तमाम तरीके के ऑफिस और वो तमाम तरीके के डिपार्टमेंट और बॉडीज हैं जिन्हें सरकार बनाती है बाय मेकिंग ए रेजोल्यूशन इन द कैबिनेट, उनको हम कहते हैं द एग्जीक्यूटिव बॉडीज। एग्जीक्यूटिव बॉडीज, एग्जीक्यूटिव बॉडी जैसे हमारे पास प्लानिंग कमीशन था, एग्जीक्यूटिव बॉडी जैसे हमारे पास नीति आयोग है, सारे के सारे डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सरकार के, वो सारे के सारे सरकार खुद बनाती है। जब कैबिनेट में रेजोल्यूशन पास होता है एंड दैट रिकमेंडेशन गोज टू द गवर्नर इन द स्टेट और एट द सेंट्रल लेवल, दैट रिकमेंडेशन गोज टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इशूज एन ऑर्डर, यानी असल काम होता है प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, यानी गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती है एंड दे आर मेड बाय वर्च्यू ऑफ अ रेजोल्यूशन, क्योंकि ऐसा करना अलाउ करता है खुद कॉन्स्टिट्यूशन that president has a right, similarly governor has a right,
आर्टिकल 77 क्लियरली बोलता है प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स फॉर एलोकेशन ऑफ बिजनेस। इन एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 भी अलाउ करता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को क्रिएट किया जा सकता है, डिफरेंट बॉडीज को क्रिएट किया जा सकता है। लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव बॉडीज and different departments of the government, they all fall under the definition of public authority। education department के पास जाऊंगा RTI फाइल करके, कहो दे दो कि मुझे सारी डिटेल्स कि कितने स्कूल्स में फंक्शनल टॉयलेट्स है, कितने स्कूल्स में प्यूपिल टीचर रेशियो जो है वो फॉलो होता है, कितने स्कूल्स में हमारे पास कंक्रीट बिल्डिंग्स है, सिमिलरली एनिमल हस्बेंड्री, सिमिलरली फिशरीज, सिमिलरली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब के सब जो है दे फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। यहां तक बात थी आर्टिकल 12 में भी कॉमन। अब आइए देखते हैं कि और क्या चीज है, और ये चीज है कि कौन है पब्लिक अथॉरिटी। जितने भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, NGOs can also fall within the definition of public authority, लेकिन जब वो करेंगे कंडीशंस फुलफिल। कंडीशन ये है जिन्हें कंट्रोल करता है गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। कंट्रोल तो वैसे सब एनजीओस को किया जाता है बिकॉज अल्टीमेट रेगुलेशन लाइज विद द गवर्नमेंट ऑफ द डे, लेकिन हियर व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज द सब्सटैंशियल फाइनेंस। अगर कोई नीम सरकारी इदारा या गैर सरकारी इदारा पाता है फाइनेंशियल सपोर्ट किससे, गवर्नमेंट ऑफ द डे से, टैक्स में एग्जम्पशन मांगता है यानी टैक्स में उसे एग्जम्पशन मिलता है, या फाइनेंस और एड मिलता है गवर्नमेंट ऑफ द डे की तरफ से, सरकार के फंड में से पैसा मिलता है, तब वो भी आ जाएगी विद इन द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, द पब्लिक अथॉरिटी। Remember, NGOs have an instrumental role in the governance of the country. There is something called outsourcing. Government of the day, it is possible and it happens कि अगर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, चिल्ड्रंस एजुकेशन से रिलेटेड या वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई पॉलिसी और प्रोग्राम होता है, सरकारी मशीनरी में इतनी तो कुव्वत नहीं है कि वो हर जगह पहुंचे। Therefore, what we do, we involve NGOs. We involve self-help groups, give them the necessary financial support so that they allow us to basically satisfy the aspirations of the government and help us in making a certain welfare program successful. So if there is an NGO which is controlled and substantially financed by the government, it also falls within the definition of public authority. इनको भी RTI का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन यहां एक चीज है, ये सब्सटेंशियल कितना है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, ये टैक्स में एग्जेम्पशन है या नेसेसरी सपोर्ट है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स दिस सब्सटेंशियल हैज नॉट बीन डिफाइंड बाय द एक्ट, इट विल बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे कि ये सब्सटेंशियल की डेफिनेशन क्या है। वंस इट इज डिक्लेयर्ड देन दैट एनजीओ आल्सो हैज टू एंटरटेन द आरटीआई एप्लीकेशन। सो व्हाट वी सॉ इज द पब्लिक अथॉरिटी, कि पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में आता क्या क्या है। लिहाजा पता ये चला कि हम आरटीआई लेके नहीं जा सकते एचडीएफसी, आरटीआई लेके नहीं जा सकते एयरटेल के दफ्तर में, एयरसेल के दफ्तर में, जियो के दफ्तर में, किसी प्राइवेट ऑफिस में, क्योंकि वो प्राइवेट बॉडीज नहीं आते विद इन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। हियर द पब्लिक अथॉरिटी ओनली इज ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन बाय एंटरटेनिंग योर आरटीआई। So next we basically deal with something called obligations of the public authority. अब याद रख लीजिए कि कोई भी इंक्लूजन करने के लिए, कोई भी सरकारी पॉलिसी, कोई भी सरकारी वेलफेयर प्रोग्राम या कोई भी एम्पावरमेंट जो है उसे कामयाब बनाने के लिए 3 A's का होना जरूरी है। यानी we basically wanted to do something called financial inclusion. उस financial inclusion में हमने क्या किया, हमने पहले ये देखा कि एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा हर किसी हाउस होल्ड को एटलीस्ट बनाया जाए। यानी देयर आर पीपल हु डिड नॉट हैव बैंक अकाउंट्स, सो व्हाट वी बेसिकली डिड, वी डिड समथिंग कॉल्ड प्रधानमंत्री जन धन योजना। जीरो बैलेंस अकाउंट पे आपको जो है वो अकाउंट खोला गया, यानी आपको अवेलेबल की गई वो फाइनेंशियल फैसिलिटी। फिर उसी तरीके से यानी पहला जो ए है वो होना जरूरी है, अवेलेबिलिटी। फिर हमने क्या किया, क्या हर एक जिले में, हर एक गांव में, हर एक तहसील में और हर किसी विलेज में बैंक है?
कुछ जगह पे है लेकिन कुछ जगह पे नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि हर 5 किलोमीटर्स में, हर 10 किलोमीटर्स में एक बैंक की ब्रांच है। मतलब मसला यहां पड़ गया एक्सेसिबिलिटी का, क्या वहां पहुंचा जा सकता है जिसने ये बैंक अकाउंट खोला। उस मामले में सरकार ने कहा कि इफ यू कैन नॉट बेसिकली एक्सेस अ बैंक ब्रांच, देयर विल बी पीपल कमिंग टू यू कॉल्ड बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के पास एक हैंड हेल्ड मशीन होगी, दे विल टेक द डिपॉजिट फ्रॉम यू एंड आप अपना कार्ड जो है वो उन्हें दे के पैसे उनसे ले भी सकते हैं। सो हमने अवेलेबल भी करवाया और एक्सेसिबल भी करवाया। देन वी बेसिकली डील विद अफोर्डेबिलिटी। So we saw what is the definition of public authority. अब हम देखेंगे कि ये जो सिटीजन को हमने एम्पावर किया कि वो आरटीआई की याचिका जो है वो दायर कर सकता है, यानी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। क्या इस चीज को, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने के लिए हमारे पास क्या नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या लॉजिस्टिक्स होनी चाहिए और क्या हमारे पास जो है वो ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए इस पब्लिक अथॉरिटी के पास, ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। बेसिकली हर किसी इंक्लूजन का हिस्सा, अगर आप चाहते हो कि कोई भी सरकारी प्रोग्राम, कोई भी सरकारी पॉलिसी जो है वो कामयाब हो जाए और लोगों का इंक्लूजन हो जाए, तो उस मामले में आपको बुनियादी तौर पे पहला जो चीज है वो अवेलेबिलिटी देखना है। पहला ए जो है वो अवेलेबिलिटी देखना है। और हमें यहाँ पे देखना है कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी अब आरटीआई एक्ट बनने के बाद जिसे आरटीआई की एप्लीकेशन को मना नहीं कर सकती बल्कि एंटरटेन करना है, दे शुड हैव द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी एक सरकारी दफ्तर और डिपार्टमेंट के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमने कितना प्रोक्योरमेंट किया, यहां से कितने कागज निकले, कितने कागज आए, हमारी क्या कॉरेस्पॉन्डेंस है with other departments, with other branches, recruitment की details, procurement की details, day to day business की details, ये सारी की सारी information जो है it should be properly catalogued, it should be properly indexed। ऐसा ना हो कि आप आरटीआई जो एंटरटेन तो करते हो लेकिन आपको कोई इस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, एनिमल हस्बेंड्री को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को कोई आइडिया ही नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन हमसे मांगी जा रही है पता नहीं वो किस फाइल में है, किस कमरे में है, ठीक है, खराब है, वो कागज कहीं खराब तो नहीं हो गए। नहीं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन तब जाके पहला ए हमारा इंक्लूजन का जो है वो सेटिस्फाई होगा जब सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, दैट इज प्रॉपर्ली कैटलॉग्ड, प्रॉपर्ली इंडेक्स्ड, and we will have to basically this public authority has to ensure ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हत्तल इम्कान डिजिटाइज की जाए और कंप्यूटराइज की जाए। यानी जो आपके पास इंफॉर्मेशन पेजेस पे अवेलेबल है, फाइल्स पे अवेलेबल है, they will have to be basically put into digital mode। इतना ही नहीं, कंप्यूटराइज भी करना है, then this will have to be made available in the network। यानी अब ये नेटवर्क पे भी चढ़ेगी। दैट इज टू से अगर एनिमल हस्बेंड्री जो है या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उन्हें कंप्यूटराइज करनी है, देन दे विल हैव टू मेक इट अवेलेबल ऑन द नेटवर्क, ताकि उनके जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, स्टेट लेवल पे जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहे। क्योंकि आरटीआई तो कहीं भी दर्ज की जा सकती है। ऐसा ना हो कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं आरटीआई फाइल करने, वो कहते हैं कि अभी हमारे पास ये फाइल नहीं है, ये मंगवाएंगे हम 5-6 दिन, फिर बंदा जाएगा और पोस्ट के जरिए वो भेजा जाएगा। ऐसा नहीं, they will have to be computerized and put it in the network, put on the network so that it is available 24/7 to all the different branches of that department. So you will have to catalog them, properly index them, computerize them and put them on the network. So what you require? You obviously require a logistical support. You require a lot of money for this, and you also require something called the HR, yani human resource. Now you will have to basically depute certain people on this kind of the work. Lihaza, there has to be, as per RTI, a hierarchy of officials and public servants कि जिनका काम यही है कि आरटीआई जो ऑब्लिगेशंस डालता है, आरटीआई के ऑब्लिगेशंस को फुलफिल किया जाए। उसका मतलब क्या हुआ? कहा जाता है कि हर किसी पब्लिक अथॉरिटी को एज पर आरटीआई एक्ट अपने डिपार्टमेंट में, यानी अगर ये दफ्तर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दफ्तर है, मान लीजिए
मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ होम का, या किसी भी मिनिस्ट्री का एक सरकारी दफ्तर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे CEO, Chief Education Officer, he is the CEO of the Srinagar, so it is a district level office. हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस पे ये जरूरी है कि वो अपने यहाँ एक बंदे को अपॉइंट करे और एक बंदे को बोले कि इसका पोस्ट है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO. Now this PIO basically will be the person who is the nodal authority and the nodal body कि जिसके सामने आप RTI जो है वो फाइल करोगे, and he is responsible for providing you with such kind of information. Then there will be a team under him. Similarly, if this office is at the sub-district level, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिस नहीं है, डिस्ट्रिक्ट से नीचे तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जोनल लेवल पे ऑफिस है, इस सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये जरूरी है कि यहाँ जो RTI की सेल को हेड करेगा, he will be APIO, Assistant Public Information Officer. He will be the nodal authority here to entertain the applications, and PIO will be the nodal authority at the district level to entertain the applications. याद रख लीजिए ये PIO और APIO जो है ये कोई फ्रेश अपॉइंटीज नहीं होते, यानी अलग से रिक्रूट नहीं किए जाते, बल्कि ऑलरेडी जो सरकारी दफ्तर में काम करते हैं अफसर, उन्हीं में से किसी को अपॉइंट और ये पोस्ट और ये अथॉरिटी दी जाती है कि आज के बाद यू विल बी वर्किंग एज अ PIO और यू विल बी वर्किंग एज एन असिस्टेंट PIO. ये कोई फ्रेश रिक्रूटमेंट्स नहीं होती और ना ही कोई फ्रेश अपॉइंटीज होते हैं. यानी पता चला कि इस पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर जो ऑब्लिगेशंस ये है ताकि इंफॉर्मेशन सारी की सारी अवेलेबल रहे, उसके लिए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है. सो वी बेसिकली सेटिस्फाइड समथिंग कॉल्ड द अवेलेबिलिटी का पहला A, sorry, inclusion का पहला A, that is availability. Now we have the human resource, we also have the logistical support. That was the obligation of the public authority and the machinery to make RTI a success. Otherwise, what we have seen, because of the discrepancies in the logistical support, because of the discrepancies in the human resource, we saw acts have been formed, लेकिन देखा जाता है कि पिछले 4-4 महीने से 8-8 महीने से पोस्ट खाली है, लिहाजा RTI या इस तरीके की चीजें मुमकिन नहीं होती. इसीलिए RTI ने कहा कि जरूरी है कि इस तरीके का मशीनरी और लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया जाए. So we saw what was the obligation of the public authority to make such kind of information available. Next we will be dealing with something called mode of operation. ये जो RTI एक्ट है ये काम कैसे करता है और किस तरीके से आप जो है वो याचिका दायर कर सकते हैं, यानी RTI जो है वो फाइल कर सकते हैं. इस मामले में याद रख लीजिए कि एक सिटीजन RTI एप्लीकेशन दे सकता है सरकारी दफ्तर में इलेक्ट्रॉनिकली भी और रिटन फॉर्म में भी, और आप ईमेल के जरिए भी कर सकते हैं और आप जो है वो एप्लीकेशन रिटन फॉर्म में भी दे सकते हैं. आपने इलेक्ट्रॉनिकली दे दी वो भी एंटरटेन होगी और रिटन फॉर्म में भी एंटरटेन होगी. जैसे ही अब पब्लिक अथॉरिटी के पास, PIO के पास या APIO के पास ये RTI एप्लीकेशन आ गई, he has to respond to it, यानी इसका जवाब देना है, या तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और अगर ये वो इंफॉर्मेशन है जो RTI खुद कहता है कि ये वाली इंफॉर्मेशन आपको मिल नहीं सकती, इसे RTI का जवाब देना है, और ये जवाब देगा इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस. This response should come in normal circumstances. This response should come within 30 days. RTI फाइल करने के बाद 30 दिन के अंदर आपको जवाब मिलना चाहिए. और अगर मामला जुड़ा हुआ है बहुत ही इमरजेंसी और अर्जेंट मामला है, if it's an issue related to life and liberty, for example somebody is filing an RTI in a सरकारी ऑफिस trying to know कि आयुष्मान भारत के अंदर या किसी और वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर क्या तरीकेकार है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां आपके घर में कोई बीमार है and he needs immediate kind of the treatment and the treatment cost is huge. now ये बंदा जानना चाहता है कि क्या कोई तरीका है कि ये एक्सपेंसेस बर्दाश्त करेगा मेरे बिना पर, गवर्नमेंट ऑफ द डे मुझे इस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए. now this is an issue of life and liberty जो बहुत
बहुत ज्यादा जो है वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, इस मामले में द PIO हैज टू रिस्पॉन्ड विद इन 48 आवर्स if it's a matter of life and liberty. In normal circumstances it is 30 days. 30 days तब होगी जब आपने RTI दे दी PIO को, लेकिन अगर आपने RTI सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फाइल की थी, that means APIO को दी थी, then APIO even in the normal circumstances he will be responding to you in 35 days. अब ये बात भी याद रख लीजिए कि अगर आपकी RTI फाइल हुई है and the matter is related to something called human rights violations, you have filed an RTI within the Ministry of Home Affairs or with a certain ministry और जानना चाहते हो कि कितने लोगों के साथ जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या कितने लोगों को जो है वो किसी भी तरीके का नुकसान का सामना करना पड़ा ऑन अकाउंट ऑफ द ऑपरेशंस कैरीड आउट बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस या कैरीड आउट बाय द पुलिस। कितने ऐसे केसेस हैं जहां पुलिस पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इल्जाम लगा, कितनी कस्टोडियल किलिंग्स हुई, कितने कस्टोडियल टॉर्चर्स हुए। इस मामले से रिलेटेड जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई RTI एप्लीकेशन है, इसका जवाब आपको मिलेगा विद इन 45 डेज, बिकॉज यहां जिसके ऊपर आप जो लगा रहे हो, जिससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दिस काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन जब आपको मिलेगी ये मीडिया में उछलेगी एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इट विल ब्रिंग डाउन द मोरल ऑफ द फोर्सेस, जबकि एंगल स्टोरी का कोई और भी हो सकता है जो RTI का जवाब देने वाला PIO मिस कर सकता है। इसलिए in order to take basically into account those factors also, here the PIO will have a detailed scrutiny, seeking responses from various departments, seeking responses from security forces, from Ministry of Home Affairs, from Ministry of Defense. Then only he will be bringing out a consolidated reply, जहां information हत्तल इम्कान जो है वो factual हो और security forces या इस तरीके की कोई भी प्रोपेगेंडा मुमकिन ना हो फोर्सेस के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ। इसलिए 45 डेज जो है वो यहाँ मिलेंगे PIO को और वो 45 डेज के अंदर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। सो फॉर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, इफ द एप्लीकेशन गोज टू PIO, द रिस्पांस शुड कम इन 30 डेज। If the same application goes to APIO, the response will have to come in 35 days. And if it's a matter related to life and liberty of the individual, then the public authority will have to respond within 48 hours only. And if the story is related to the human rights violation, it needs a detailed scrutiny so that there is no room left open for any kind of propaganda against the state. Here, the PIO will take the time, and that is 45 days. और याद रख लीजिए, अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, if you are not getting any kind of response, यहां तक कि गुजर गए 30 days, 30 दिन गुजरने के बावजूद भी आपको RTI का जवाब नहीं मिलेगा, it will be deemed, ये माना जाएगा कि the citizen has been denied information. The citizen has been denied, यानी 30 दिन भी हो गए और आपकी याचिका को कोई जवाब आया नहीं, it will be deemed कि आपको इंफॉर्मेशन रिफ्यूज की गई है और डिनाई की गई है। आगे हम देखेंगे कि क्या जब इंफॉर्मेशन डिनाई की जाती है फिर इस सिटीजन के पास कौन से रास्ते रह जाते हैं। That is to say, is there any kind of penalty? क्या कोई नुकसान और कोई सजा हो सकता है इस पब्लिक अथॉरिटी को जिसने विदाउट एनी वैलिड रीजन आपको इंफॉर्मेशन देने से इनकार किया। सो हमने देखा कि मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है इस पर्टिकुलर एक्ट का, कि कैसे आप अपनी याचिका जो है वो या RTI फाइल कर सकते हैं। और अगर आपको 30 दिन के अंदर जवाब नहीं मिला तो ये माना जाएगा कि आपको जो है वो इंफॉर्मेशन डिनाई की गई। ऐसे मामले में जब आपको इंफॉर्मेशन रिफ्यूज की गई, नहीं दी गई, ठीक है, और विदाउट कोई वैलिड रीजन भी नहीं था, अगर आपको इंफॉर्मेशन जो दी गई वो डिस्टॉर्टेड दी गई, यानी जो मांगा था वो नहीं दिया गया और जिस अमाउंट में मांगा था वो नहीं दिया गया, आपने कुछ और मांगा था, आपको कुछ और मिला। इफ यू हैव बीन रिफ्यूज्ड इंफॉर्मेशन, if the information provided is distorted or if the information provided is false, गलत इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन नहीं मांगी थी वो इंफॉर्मेशन, या इंफॉर्मेशन सरे से आपको मना ही किया गया और कोई वैलिड रीजन भी नहीं था, इस मामले में
ये पॉसिबल है कि उस पर्टिकुलर पीआईओ पर जिसने इस तरीके की हरकतें की है उस पर लग सकता है एक पेनल्टी, और पेनल्टी उस पर लगाएगा इंफॉर्मेशन कमीशन, चाहे स्टेट का इंफॉर्मेशन कमीशन हो या सेंटर का इंफॉर्मेशन कमीशन हो, जिसके साथ हम आगे के वीडियोस में डील करेंगे। और पेनल्टी इस पे लगेगी हर दिन 250 रुपये, यानी हर दिन का डिले, हर दिन का डिले 30 दिन, इसके पास अपना ही टाइम था कि 30 दिन के बाद 30 दिन के अंदर अंदर इसको देना था। 30 दिन के बाद के हर दिन का जो डिले है, he will have to be basically pay a fine and penalty of rupees 250 and it can go for maximum 100 days. That is to say 25,000 तक इस पर फाइन लग सकता है इस पीआईओ पर। 25,000 हर दिन 250 और ज्यादा से ज्यादा ये 100 दिन तक लग सकता है। एंड इट इज पॉसिबल ऑल्सो दैट द कमीशन यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, अगर ये मरकज के डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, या स्टेट का इंफॉर्मेशन कमीशन अगर ये स्टेट की इंफॉर्मेशन कमीशन से स्टेट के डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, तो इस पर वो रेकमेंड कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ द डे को कि इस पर जो है वो कोई जो है वो एक्शन भी ली जाए। एक्शन ली जाएगी इफ ही इज परसिस्टेंटली बिहेविंग इन सच अ मैनर, यानी हैबिचुअली ये डिनाई करता है इंफॉर्मेशन, रिफ्यूज करता है इंफॉर्मेशन, या डिस्टॉर्टेड या फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है। अगर ऐसी कंप्लेंट्स बार बार इस पीआईओ या एपीआईओ के खिलाफ आती है, देन द कमीशन हैज ऑल द पावर्स टू मेक रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट टू टेक एक्शंस, डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट सच एरेंट पीआईओ और एपीआईओ। लेकिन ये याद रख लीजिए कि सिर्फ पेनल्टी होगी या कोई एक्शन होगी, देयर इज नो क्रिमिनल लायबिलिटी, कोई क्रिमिनल लायबिलिटी इसके ऊपर नहीं है। भले ही इसकी इंफॉर्मेशन डिनाई करने की वजह से किसी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, किसी को बहुत बड़ा जो है वो नुकसान करने का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इस पीआईओ पे बहरहाल आरटीआई के मुताबिक देयर आर नो क्रिमिनल लायबिलिटीज, इसे जेल वगैरह नहीं भेजा जाएगा और ना ही कोई इस तरीके की सख्त सजा सुनाई दी जाएगी। देयर इज अ पेनल्टी व्हिच कैन गो अप टू मैक्सिमम 25,000 एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ डिपार्टमेंटल एक्शन कैन आल्सो बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम। सो दैट वाज द पेनल्टी प्रोविजन। So next we'll be dealing with something called accessibility and affordability। क्या आरटीआई जो हमने देखा कि किसी भी इंक्लूजन में 3 A's का होना जरूरी है। पहला ए तो हमने देखा अवेलेबिलिटी कि दफ्तर में है मौजूद इस तरह की इंफॉर्मेशन। क्या ये एक्सेसिबल भी है सबके लिए और अफोर्डेबल भी है सबके लिए? बिल्कुल है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ आरटीआई, क्योंकि आरटीआई कहता है देयर विल बी लो फी फॉर द आरटीआई एप्लीकेशन फाइल जब आप करोगे आपसे कोई बहुत बड़ी रकम नहीं मांगी जाएगी, बल्कि बहुत हल्की सी फीस आपसे मांगी जाएगी ताकि ये आपके लिए अफोर्डेबल हो जाए। और अगर आप बीपीएल से ताल्लुक रखते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, देन देयर इज नो फी। Obviously a BPL guy he won't be having that much of money कि वो इस तरीके की RTI एप्लीकेशन और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे। In order to encourage him and make it very much affordable for the masses there is low fee and for the BPL there is no fee। अब ये भी याद रख लीजिए कि एक्सेसिबिलिटी के मामले में we have in India a good number of people, a considerable chunk of the population is not literate. Even those literate, they are not literate in terms of administrative matters कि कैसे फाइल करना है, कहाँ जाना है। लिहाजा जब आप सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो वहां पे आरटीआई कहता है कि देयर शुड बी पीपल, कि अगर कोई इलिटरेट लोग और अनपढ़ लोग होते हैं जो खुद रिटन एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, देयर विल बी पीपल जो उनकी ओरल एप्लीकेशन को रिटन फॉर्म में डालेंगे और याचिका और आरटीआई को जो है वो फाइल करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि मुझे लोकल लैंग्वेजेस में जवाब मिले, उस आरटीआई का फायदा ही क्या है, जो अंग्रेजी में मिले या उर्दू में मिले, हिंदी में मिले, जो मुझे आती नहीं, मुझे डोगरी आती है, पंजाबी आती है या कोई और लैंग्वेज आती है। If possible, if necessary, the PIO can also provide the information in the vernacular or the local languages, if at all there are certain possibilities। इसी तरीके से अगर कोई डिसेबल्ड है,
डिसेबल्ड के लिए भी एक्सेसिबिलिटी के मामले में देयर विल बी चेयर्स अवेलेबल, देयर विल बी सच काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कि अगर कोई डिसेबल्ड लोग भी है वो भी एक सरकारी दफ्तर में जा सकते हैं और अपनी आरटीआई जो है वो जो है फाइल कर सकते हैं। लिहाजा हमने देखा अवेलेबिलिटी भी है, अफोर्डेबिलिटी भी है आरटीआई के अंदर और एक्सेसिबिलिटी भी है। सो दैट मेक्स योर इंक्लूजन कंप्लीट। From Main's point of view, whenever you are asked to make an analysis of a certain program or a policy, first of all देखना चाहिए कि क्या ये मुमकिन है, is this inclusion possible? For example, when people were basically adamant that there should be a kind of system that everyone in India should become a part of the formal financial system. That is to say, why can't we have financial inclusion in India? And for financial inclusion, it was necessary that each and every household at least should have a valid bank account, whereas we had a considerable number of people who did not have bank accounts. So we came up with something called Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. What did Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana say? That there will be a bank account registered on the name of the woman candidate in a family, and that will be a zero balance account. और इस तरीके से हमने क्या किया कि बैंक अकाउंट जो है वो सबके लिए प्रोवाइड किया, अवेलेबल करवाया। अब मामला ये था कि ये तो आ गया, क्या ऐसा करना एक्सेसिबल है और एफोर्डेबल है? एफोर्डेबल इसलिए है कि आपको कहा गया कि आपको कोई फीस और अकाउंट में कोई डिपॉजिट नहीं रखना, अगर जीरो बैलेंस भी है तो आपका अकाउंट वेरी मच ऑपरेशनल है। अब मामला ये है कि जो गांव में लोग रहते हैं और जो गांव में औरत रहती है, क्या उसके लिए मुमकिन है कि वो बैंक ब्रांच जा सकती है बार बार पैसा डालने के लिए, पैसा निकालने के लिए? इज दिस एक्सेसिबल? क्या वहां जाना इजी है? पता चला कि इसको तो किराए पर ही गांव से बैंक ब्रांच तक 100-150 रुपए का खर्चा आता है और डिपॉजिट भी उससे इतना ही 200-300 करने थे। इस मामले में सरकार ने कहा इफ यू कैन नॉट गो टू द बैंक, बैंक विल कम टू यू। ये पॉसिबल नहीं है कि हर विलेज में हर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर में बैंक ब्रांच हो। So सरकार came up with a plan called there will be people called banking correspondents. These banking correspondents on regular basis will be visiting your village with a handheld machine. They will take money from you, and if you give them your card, they can also basically put it in the machine and give you the money as well. So it was made available by each family having a bank account. It was made accessible and affordable. That completes your inclusion. Similarly is the case with the Pradhan Mantri Ujjwal Yojana, that is to give the LPG cylinder, etc. So what we require to basically understand in terms of any legislation or policy, is there inclusion possible by virtue of having all three satisfied or not? Next we'll be dealing with, so we dealt with accessibility, we dealt with affordability, we shall be next dealing with, is there any kind of information which is exempted under RTI? क्या किसी RTI की एप्लीकेशन का जवाब देना सरकार पर लाजिम नहीं है? क्या वो डिनाई किया जा सकता है? So before we deal with those kinds of informations which are exempted from RTI, we will have to basically understand that RTI एप्लीकेशन जब फाइल करेगा सिटीजन, वो उस अपनी वैलिड डिटेल्स बोलेगा, नाम एड्रेस तो बोलना पड़ेगा, so that information is given to you on that valid address and those details. However, you do not need to specify the reason कि मुझे ये RTI क्यों भरनी है और मुझे इस RTI का जवाब क्यों चाहिए. You will have to give your name and valid address, etc. That is enough. You will not be asked about your political alienation. पता ये चला कि तुम कांग्रेस के वर्कर तो नहीं हो, तुम ऑपोजिशन के वर्कर तो नहीं हो कि तुम्हें इसलिए गवर्नमेंट ऑफिस की डिटेल्स चाहिए, सो दैट यू मेक इट टू एन इशू. तुम कहीं जर्नलिस्ट तो नहीं हो कि तुम बाद में इसे अपनी न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल में डिबेट का सामान बनाओगे इसका. नो, यू डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द रीजंस एक्सेप्ट दोज द कॉन्टैक्ट डिटेल्स व्हिच आर नेसेसरी. यानी आपको मजबूर नहीं किया जा सकता कि हमें वजह बोलो, कहीं बाद में तुम्हें इस चीज की स्टोरी तो नहीं करनी, बाद में तुम्हें इस मसले को उछालना तो नहीं है, तुम ऑपोजिशन के मेंबर तो नहीं हो. दोज काइंड्स ऑफ डिटेल्स वोंट बी आस्क्ड बिकॉज फिर वो आरटीआई का सारा जो पर्पस है वो डिफीट करेगा. नाउ वी मूव ऑन टू द एक्सेप्शंस. क्या ऐसी कोई चीज है जो आरटीआई खुद सरे से कहता है भैया ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती? दैट इज अ पार्ट ऑफ सेक्शन 8 क्लॉज 1. सेक्शन 8 का जो पहला क्लॉज है वो कहता है कि 11 ऐसे आइटम्स हैं, 11 इंफॉर्मेशंस
ऐसी है that PIO and APIO can refuse you. यानी it will be basically put in the RTI reply that such kind of information cannot be divulged as per section 8(1) of the RTI. ऐसी कौन सी एग्जेप्शंस है कि जो इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती? याद रख लीजिए, हर एक वो इंफॉर्मेशन जिसमें ये पोटेंशियल है टू प्रीजुडिशियली, यानी इन अ हार्मफुल मैनर, इन अ नेगेटिव मैनर, ताकि वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपको डिनाई की जा सकती है, जिसमें ये पोटेंशियल है कि इट कैन वेरी लाइकली अफेक्ट in a negative sense the sovereignty, integrity and security of the country. जिसमें ये पोटेंशियल है कि ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आएगी अवाम उन्नास में तो मुल्क की सालमियत, अखंडता और एकता पे एक हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ सकता है. If we could talk of this particular clause in the context of the present standoff which is happening between India and China, or for that matter the constitutional and the debate that is going on between India and Nepal on this whole question of drawing the boundaries etc. अब इस मामले में आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या PMO वगैरह में RTI फाइल नहीं कर सकते कि मुझे बोलिए एग्जैक्टली कि व्हाट इज हैपनिंग इन द गालवान वैली. You cannot be seeking a reply from the Ministry of Defense Affairs. What is the nature and the agenda of the talks that is taking place at the military general level in the Galwan Valley? Such kind of information cannot be divulged. It cannot be given away to the masses because it has a potential to affect the integrity, the security and the sovereignty of the country. Similarly, you cannot be asking for that kind of information जिसमें ये पोटेंशियल हो कि वो एक गलत तरीके से आपकी रिलेशन खराब करे, आपके फॉरेन जो है वो आपके एलाइज जो है या फॉरेन रिलेशंस में वो गलत असर पड़ सकता है. फॉर एग्जांपल, obviously if Nepal has approved an amendment to their constitution showing those territories which India claims to be the part of Nepal, then obviously there can be certain level of talks must be going on. Now at this point of time you cannot be asking from the Ministry of External Affairs, give us the details of all those correspondences that are happening between you and the government of the Nepal. Such kind of information which can prejudicially affect the relationship of the country with its allies or with its partners or with its neighbors, जिस पर foreign relations में आपका असर पड़ेगा गलत तरीके से, वो information भी section 8 clause 1 के हिसाब से आपको deny की जाएगी. इसी तरीके से which has a potential to hurt your economic interests, जो आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को हर्ट कर सकता है, उस तरीके की इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं दी जा सकती. फॉर एग्जांपल, दिस होल डिबेट ऑफ हु शैल बी गिवन दिस राइट ऑफ एस्टैब्लिशिंग द 5G network, whether it should be an American company or the Huawei from China. Now there must be such correspondences happening between these two of India with these two powers, China and America. Now such kind of information जिसमें ये पोटेंशियल है कि अगर ये इस बात की हवा अवाम उन्नास को लगी तो इसमें ये पोटेंशियल है कि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हर्ट किया जा सकता है या कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हर्ट हो सकते हैं. सिमिलरली, इंफॉर्मेशन विच इज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे इन कॉन्फिडेंस, वो वाली इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है अपने फॉरेन गवर्नमेंट से, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेपाल की गवर्नमेंट से, अमेरिका की गवर्नमेंट से, चाइना की गवर्नमेंट से, जापान की गवर्नमेंट से, whether it's a matter related to the nuclear energy, whether it's a matter related to the economic relations, it's a matter related to the border disputes, जो भी इंफॉर्मेशन आपको इन कॉन्फिडेंस देता है कोई भी इदारा. फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ वी आर डीलिंग विद अ सर्टेन काइंड ऑफ मैकेनिज्म दैट इज फाइटिंग टेररिज्म, एंड टेररिज्म इमर्ज्ड आउट टू बी अ ग्लोबल फिनोमेना. इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट व्हाट वी हैव बीन सीइंग कि कंट्रीज के दरमियान जो बहुत सबसे पहला जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एरिया ऑफ कोऑपरेशन पाया जाता है, दैट इज काउंटर टेररिज्म, particularly between the countries who have been subjected to such kind of atrocities. So it is possible that the government of India might be getting some intelligence from the government of Israel. Government of India might be getting some intelligence on the movement of the terrorist or terror financing etc. from certain other governments, say Japan, say Australia, say Afghanistan, whatever it is.
सो वो इंफॉर्मेशन जो आपको इन कॉन्फिडेंस देता है आपका फॉरेन पार्टनर या फॉरेन गवर्नमेंट, उस तरीके की इंफॉर्मेशन भी आप नहीं दे सकते अंडर आरटीआई। और याद रख लीजिए कि व्हाटएवर हैपेंस इन द कैबिनेट, A minister takes the oath of secrecy. जो oath of secrecy उसे देता है president at the central level and at the state level. It is the governor who administers the oath of secrecy to the minister. That whatever happens within the cabinet and the cabinet meetings, that is a secret information. Such kind of information cannot be divulged to the third party, cannot be divulged to the media and the masses. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होता है, जो कैबिनेट के कागजात होते हैं, जो सेक्रेटरीज की कॉरेस्पॉन्डेंस होती है अपने मिनिस्टर के साथ, या विद इन द सेक्रेटरी लेवल पे जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन भी जो है वो आरटीआई के अंदर एग्जेम्प्टेड है। इसी तरीके की इंफॉर्मेशन एक और है जो आरटीआई के अंदर आपको नहीं दी जाएगी। That is the information which is forbidden by the court itself. Now there are certain matters which are very sensitive. ऐसे भी sensitive matters गुजरे हैं in the judicial history and the constitutional history of India, where the Supreme Court has basically put a condition that media has been refrained from reporting on this particular issue because it's a very sensitive matter. I remember there was a certain kind of case where an allegation had been made by a junior judge against the senior judge in a certain state court that he had molested her or raped her. Now this particular institution called judiciary is someone which is responsible for upholding the constitution. They are the most independent institutions in the country. Now इस तरीके की चीज जहां पे कोर्ट की पोजीशन स्कैंडलाइज हो सकती है, कोर्ट को एक बैड लाइट में शो करने का पोटेंशियल जिसमें हो, इस तरीके की इंफॉर्मेशन में कोर्ट ने रेप्रिमांड किया था उन मीडिया हाउसेस को जो इस पे रिपोर्ट कर रहे थे, एंड कहा था द कंडीशन हैड बीन पुट दैट द मीडिया हैज बीन बार्ड फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑन सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. सिमिलरली वाज द केस विद द रफाल आल्सो. दैट इज कोई इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो बहुत सेंसिटिव होती है, जहां कोर्ट खुद कहता है या ट्राइब्यूनल व्हिच इज अ कोर्ट फॉर अ स्पेशल पर्पस खुद कहता है कि ये इंफॉर्मेशन आप नहीं दे सकते अवाम उन्नास में. लिहाजा आरटीआई से भी रिलेटेड, अगर इससे रिलेटेड कोई आरटीआई फाइल होगी तो उस आरटीआई का भी जवाब नहीं होगा, उसमें कहा जाएगा सच इंफॉर्मेशन इज एग्जेम्प्टेड. आपने कभी कभी अखबार में यू माइट हैव हर्ड दिस टर्म दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू इट्स Attorney General presented the affidavit in the Supreme Court in a sealed cover. In a sealed cover. यानी एक मामला ऐसा था कि गवर्नमेंट ऑफ द डे से जवाब मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कि गिव अस योर ऑफिशियल पोजीशन, अपना एफिडेविट प्रेजेंट करो. लिहाजा वो एफिडेविट तो देते हैं लेकिन दे गिव इट इन अ सील्ड कवर. व्हाट इज दैट सील्ड कवर? दैट मीन्स जो एफिडेविट है उसमें ऐसी चीजें हैं, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ऐसे सेंसिटिव मैटर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि ये खुल्लम खुला कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, इस पर मीडिया रिपोर्ट नहीं कर सकती. ये जो है वो इंफॉर्मेशन इन कॉन्फिडेंस दी जाती है टू द जज, सो इट इज टू बी गिवन इन अ सील्ड कवर. सो देयर आर इंफॉर्मेशंस व्हिच आर वेरी सेंसिटिव एंड आरटीआई कीप्स एन अकाउंट ऑफ दैट एंड सेज सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन cannot be given away by virtue of RTI applications. Similarly, if there is an information that has the potential that it could lead to the breach of the privilege of the parliament or the state legislature. आपने अक्सर देखा होगा कि when people are asked to comment on a certain matter, say Babri Masjid, say Article 370, or say what do you call that, say triple talaq, they often keep on saying कि the matter is sub judice, we cannot talk about it. लिहाजा ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि जो बहुत सेंसिटिव मैटर्स में सेंसिटिव होती है, जिसके बारे में जुडिशरी में भी आप सील कवर में अपना एफिडेविट या डिटेल्स पेश करते हो. इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो इसे कोर्ट खुद फॉरबिड कर सकता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन आरटीआई के जरिए भी आपको मिल नहीं सकती. सिमिलरली ऐसी भी इंफॉर्मेशन है जो अगर आपने डाइवर्ज की तो इट विल हैव द पोटेंशियल ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को वायलेट करेगा. आर्टिकल 105
पार्लियामेंट हैज ए प्रिविलेज, कलेक्टिव प्रिविलेज भी है और मेंबर पार्लियामेंट्स के पास इंडिविजुअल प्रिविलेज भी है। ऐसी कोई चीज which will try to scandalize the position of the parliament or the state legislature और उसके प्रिविलेज को वायलेट कर सकता है, ब्रीच कर सकता है, ऐसी इंफॉर्मेशन भी आप जो है वो नहीं दे सकते अंडर आरटीआई। फॉर एग्जांपल somebody filed an RTI, give me an account of all those incidents जहां एक मेंबर पार्लियामेंट ने दूसरे मेंबर पार्लियामेंट को गाली मारी, आज तक कितनी गालियां मारी गई है, आज तक कितनी बार स्कफल और मैन हैंडलिंग हुई है आरटीआई और स्टेट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में। ऑब्वियसली सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विल लीड टू द ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। इसके बगैर कहा जाता है कि आरटीआई जो है उसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन वो भी डिनाई की जा सकती है जिससे किसी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन पे फर्क पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल सेबी विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंपनीज जिनके स्टॉक एक्सचेंज पे जो है वो लिस्ट होते शेयर्स। आरबीआई विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, आरबीआई के पास ये सारी इंफॉर्मेशन है कि किस बैंक ने मेरे पास प्रपोजल लाया है मर्जर का, वाइंड अप होने का, एक्विजिशन करने का, किस कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास प्रपोजल दिया है कि हम जो है वो अपनी कंपनीज को वाइंड अप कर रहे हैं, या बैंकरप्सी कोड ऑफ अंडर के अंदर किन्होंने बैंकरप्सी के लिए अपना वाइंड अप बिजनेस करने के लिए प्रपोजल दिया है। ना इस तरीके की इंफॉर्मेशन जिसमें ये पोटेंशियल है कि एक कंपनी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को जो है वो नुकसान पहुंच सकता है जब अगली कंपनी को उसके कॉम्पिटिटर को पता चलेगा कि ये लोग जो है कोई मर्जर करने वाले हैं, दे आर कमिंग अप विद अ न्यू इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के बारे में इंफॉर्मेशन है रेगुलेटरी बॉडी को, ना कि कॉम्पिटिटर ऑफ द एयरसेल, ना कि कॉम्पिटिटर ऑफ द एयरटेल। द मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम, द ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, बट दैट इज नॉट सपोज्ड टू बी गिवन टू द competitor because it will have a kind of harmful impact on the competitive position. Somebody came up with a proposal that I want a patent or a trademark for this particular product. So Director General of Patents, Designs and Geographical Indications के पास वो जाएगा, they will have the information. ये इंफॉर्मेशन किसी कॉम्पिटिटर को नहीं दी जा सकती कि ऐसे पेटेंट के लिए किसी ने अप्लाई किया है, मे बी they also come up with such kind of innovation or copy that kind of innovation. लिहाजा ट्रेड सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स जिनमें पोटेंशियल है कि वो कॉम्पिटिटिव पोजीशन और कंपटीशन को जो है वो हार्मफुली इंपैक्ट करे, कंपटीशन एक्ट के खिलाफ भी जो जाता है कि यू कैन नॉट हैव एन अनफेयर कंपटीशन, द रेगुलेटरी बॉडी कैन नॉट गिव अवे सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। और इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है कि वो वाली इंफॉर्मेशन जो आपको दी गई इन अ फिडुशियरी पोजीशन और इन अ फिडुशियरी रिलेशनशिप। फिडुशियरी क्या होता है? फिडुशियरी होता है when you repose your trust in someone. For example, you have committed a crime, but you are not supposed to lie to your lawyer. You have to give every information to your lawyer कि ऐसा ऐसा हुआ था, now you will have to save me. Similarly, a patient cannot be concealing facts from the doctor. Now this is a fiduciary relationship. It is in a position of trust. आपने उसको सब चीजें बोली है इस यकीन के साथ कि वो आगे जो है आपका डॉक्टर, he will not make an issue out of it or he will not exploit you on this matter. Similarly, when you give information to the tribe that we are going for mergers, when you give information to the Ministry of Corporate Affairs that we are winding up our business, when you give your information to the RBI that we will have to go for such kind of initiatives, when you apply for patents, when you apply for trademarks, it is in a position of trust. This position of trust cannot be, this position relationship cannot be violated by the public authority by giving away such information unless and until the public information officer or the public authority feels कि इस रिलेशन का बाहर जाना, इस रिलेशन का लोगों को, इस इंफॉर्मेशन का लोगों को पता चलना, it will serve more public interest than concealing this information. That is, RBI may be feeling कि I will have to give a true position
of the NPAs, non-performing assets and the financial health of the banks to the masses so that they will know कि किस बैंक को कौन सा बैंक लॉस की तरफ जा रहा है और कहां पे वो should invest, किस कंपनी में वो should invest. Here the public authority will decide कि छुपाना ज्यादा public interest serve करता है कि बताना ज्यादा public interest serve करता है. He will decide. अगर उस divergence से ही public interest serve होता है, then he will give away such kind of information. और भी इंफॉर्मेशन जो एग्जाम्प्ट की जा सकती है अंडर आरटीआई वो ये है कि विच हैज द पोटेंशियल ऑफ अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी. फॉर एग्जांपल, किसी ने एक याचिका और आरटीआई एप्लीकेशन दायर की एजुकेशन डिपार्टमेंट में कि मुझे लिस्ट दे दीजिए कि सरकार के कितने टीचर्स हैं जो ट्रेन हैं, जिन्होंने बीएड किया है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, जिन्होंने पीएचडी किया है. नाउ दिस इज अ वेरी वैलिड रिक्वेस्ट, बट if the same applicant files another RTI, give me the information of all the teachers and all the people working with education department but suffering from HIV, but suffering from asthma, but suffering from any other kind of illness. So लिहाजा आप फिडुशियरी रिलेशनशिप को वायलेट नहीं कर सकते ये वो इंफॉर्मेशन देके जो आपको एक ऑफिस ने या एक इंडिविजुअल ने इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट दे दी, unless and until public authority is satisfied that the disclosure of the information will serve more public interest than the concealment of the information. इसी तरीके से सेक्शन 8 में ये भी प्रोविजन है कि वो वाली इंफॉर्मेशन भी आपको आरटीआई के जरिए नहीं मिल सकती which basically concerns the private details of an individual, जिसका disclosure कोई public interest serve नहीं करता. For example, it makes sense that you file an RTI in the Ministry of Human Resource trying to find out कि what is the percentage of the teachers who are trained in the education department, what is the number of the teachers that have post-graduation, that have done post-graduation or have done graduation, etc. Now it makes all sense that such kind of information is necessary and it serves the public interest कि what is the status of our teachers. But you cannot be filing an RTI telling the government of the day that give me the percentage of the teachers and the details of the teachers who are suffering from HIV, who are suffering from a certain health condition. Obviously, health is a very personal issue. You cannot be asking the government of the day, give me the names and the details of the teachers who are transgenders, who have a different sexual orientation. Now, this kind of information is very private. Now, sexuality is a part of the private autonomy. Lihaza, such kind of information cannot be diverse under RTI. Unless and until public authority को ये लगे, ये बैलेंस करके कि concealment of the information उतना public interest serve नहीं करता जितना इस information का disclosure. For example, the same RTI is filed in the Ministry of Home Affairs, trying to find out what is the percentage of the CRPF or the Central Armed Police Forces personnel that are suffering from a certain health condition. Now, health is a part of the physical. Now, health is a part of a certain kind of the physical strength. So, as a security forces का physically fit होना बहुत जरूरी है. यहाँ RTI का जवाब दिया जा सकता है क्योंकि यहाँ public interest यही सर्व करेगा कि कितने security forces के आदमी जो है they are suffering from a certain health condition, say HIV, say cancer or certain other kind of ailments. लिहाजा पता चला कि if there is an unwarranted invasion of privacy, such kind of information can be exempted. But if under RTI the PIO feels that the disclosure of the information is better, then he can give away the information. Similarly, वो वाली information जो आप मांग रहे हो थर्ड पार्टी से रिलेटेड, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक आरटीआई फाइल की और मैं सरकारी डिपार्टमेंट्स, सरकारी स्कूलों का स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिटेल्स चाहता हूं कि कहां पे गर्ल्स के लिए अलग टॉयलेट है, कहां कितने टीचर्स ट्रेंड है, किधर फर्नीचर है, किधर कितने रेंटेड बिल्डिंग्स में फंक्शन करते हैं, कितने स्कूल्स में अपनी बिल्डिंग्स है. दिस इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सेकेंड बॉडी विच इज द गवर्नमेंट. But if you are seeking information regarding a third party, you are seeking information regarding a private school, इस मामले में थर्ड पार्टी से रिलेटेड तब तक आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा रेगुलेटरी अथॉरिटी जब तक कि ना उस थर्ड पार्टी को बोला जाए और उसे नोटिस दी जाए. ही शुड बी बेसिकली नोइंग कि उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को या किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी को. तो पता चला कि ये वाले वो इश्यूज है जहां पर
जो एग्जेम्पशन है आरटीआई के अंडर आपको पब्लिक अथॉरिटी डिनाई कर सकती है जवाब में कि दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, दिस इज अ मैटर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, दिस इज अ मैटर व्हिच इज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस, दिस इज द इंफॉर्मेशन व्हिच हैज स्ट्रिक्टली बीन फॉरबिडन बाय द कोर्ट, दिस इंफॉर्मेशन हैज द पोटेंशियल ऑफ लीडिंग टू द ब्रीच ऑफ privilege of parliament. Now this is a matter which has to do with the fiduciary relationship. This might lead to the invasion of privacy. This is a matter related to the third party. ये सब exceptions के बावजूद एक ऐसा सेक्शन क्लॉज है इस आरटीआई में जिसने बहुत एम्पावर किया है इस आरटीआई मूवमेंट को। सेक्शन 8 का दूसरा क्लॉज ये कहता है कि अगर even if the information is exempted, information इन सब चीजों से रिलेटेड है या जो कि exempted है, information उन चीजों से भी रिलेटेड है जो कि क्लासिफाइड है, लिहाजा ये हुई वो इंफॉर्मेशन जो exempted है। लेकिन पता चला कि ये वाले जो फ्रेजेस हैं सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशंस, ये इतने वसी है कि इसके एम्बिट में पब्लिक अथॉरिटी चाहे तो कुछ भी अंडर द गार्ब ऑफ सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, दे कुड बी डिनाइंग एनी इंफॉर्मेशन under the garb of fiduciary relationship, under the garb of confidence forbidden by the court, they could be basically denying any kind of information. That is why there is a provision in the section 8 itself, that is section 8 clause 2, which is very over encompassing. वो क्या बोलता है कि notwithstanding anything contained in the above provision, यानी बजाय इंस्टेड ऑफ डिस्पाइट हैविंग सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, ये वाली चीजें, अगर इंफॉर्मेशन वो भी है जिसे खुद इन लिस्ट्स के तहत एग्जेम्प्ट किया गया है, या इंफॉर्मेशन वो है जो ऑफिशियल सीक्रेट्स के अंदर है एक्सेप्ट क्लासिफाइड, जो हम आगे देखेंगे क्लासिफाइड क्या होता है, अगर जो एग्जेम्प्टेड है, अगर जो इंफॉर्मेशन वो है जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर आती है और पब्लिक अथॉरिटी के पास पावर था कि वो डिनाई कर सकता था, लेकिन पब्लिक अथॉरिटी को कहा गया है कि इवन इफ देयर इज एन एग्जेम्पशन, इवन इफ इट इज अ मैटर रिलेटेड टू ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, except the classified information, a public authority has to apply his mind. माइंड कैसे अप्लाई करेगा? वो देखेगा कि जो इंफॉर्मेशन मुझे मांगी जा रही है क्या ये सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी से रिलेटेड तो जरूर है, लेकिन इसका छुपाना उतना पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं करता जितना इसका डिस्क्लोज करना सर्व करता है। फॉर एग्जाम्पल बोफोर्स स्कैम जो हुआ था, एलिगेशन लगी थी, द गवर्नमेंट हैड कम क्लीन ऑन इट। सिमिलरली इन द रफाल मामला द गवर्नमेंट केम क्लीन आउट ऑफ इट। लेकिन फिर भी जब रफाल वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में था, then the attorney general tried to convince the court कि it's a matter of security, the court should not intervene. कोर्ट ने जवाब में कहा था कि if there is corruption then it has to be investigated. Corruption can't be basically concealed, corruption को आप छुपा नहीं सकते under the garb of national security. पता ये चला कि पब्लिक अथॉरिटी अपना माइंड अप्लाई करके देखेगा कि इस इंफॉर्मेशन अगरचे ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, अगरचे ये कैबिनेट से रिलेटेड है, अगरचे ये फिडुशियरी रिलेशनशिप से रिलेटेड है, लेकिन क्या इसका छुपाना कहीं गलत इंपैक्ट तो नहीं डालेगा पब्लिक इंटरेस्ट पे, लिहाजा ही विल अप्लाई हिज माइंड इफ द डिस्क्लोजर सर्व्स द पब्लिक इंटरेस्ट। फिर चाहे वो सॉवरेनिटी से रिलेटेड हो, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड हो, लेकिन अगर पब्लिक अथॉरिटी को लगे कि इसका डिस्क्लोजर ही पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा सर्व करता है इसका छुपाने से, देन एज पर सेक्शन क्लॉज 2 he has the right to make such kind of information available under RTI। और ऑफिशियल सीक्रेट्स के अंदर, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट से भी अगर वो मामला जुड़े हुए हैं एक्सेप्ट द क्लासिफाइड, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर दोनों तरीके के मामला थे, क्लासिफाइड और डीक्लासिफाइड भी। अगर ये इंफॉर्मेशन है डीक्लासिफाइड से रिलेटेड जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मना कर सकता था पब्लिक अथॉरिटी, लेकिन आफ्टर अप्लाइंग हिज माइंड ही थिंक्स द पब्लिक इंटरेस्ट इज सर्व्ड सो ही कैन मेक सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। लिहाजा सेक्शन 8 और उसका क्लॉज 2 बहुत ही ज्यादा ओवर एनकंपासिंग है, एग्जम्पशंस के बावजूद वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल कर सकता है। सिमिलरली सेक्शन 22 of the RTI which has a similar meaning saying that this act will have an effect
ठीक है, notwithstanding anything contained under section 8 clause 1 or the Official Secrets Act, यानी अगरचे एग्जम्पशन भी है, अगरचे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में भी वो कवर होता है, लेकिन पब्लिक अथॉरिटी को अगर लगे कि वो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, लिहाजा वो दे सकता है. सो दीज वर द salient features of the act, and in the end we discussed the section 8 clause 1, the exemptions under the act. In the next video of the RTI, we shall be discussing in detail the RTI Amendment Act 2019 and the controversy over it. We shall also be dealing with the Central Information Commission, its structure, functions, and its role. So, wait for the next video. Till then, do not forget to subscribe our channel, share and like our video.